Hello, good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts, standard 11th, chapter number 9, ledger posting. In our last video, we studied ledger posting from columnar purchase book, but the columns were as per goods. Different types of goods were there, and now something different is there in question number 10. Before proceeding to ledger posting, आपका question number 10 का subsidiary book, that is purchase book, along with the columns of expenses ready होना चाहिए. रेलवे फ्रेट का एक्सपेंस है, वेजेस है एंड कैरिएज है. वो तीन टाइप का डिफरेंट आपका columnar purchase book अगर ready होगा, then it will become easy for you to understand ledger posting from that columnar purchase book. So it is advisable, please be ready for ledger posting, but before that prepare columnar purchase book. Let us proceed with question number 10. Now starting with question number 10 on your page number 245. From the following information, prepare columnar, that is expense wise purchase book of John Fashions and post them in the ledger. The question number 9 which we have done was also columnar, but that was as per goods wise. And now we are learning expense wise ledger posting. Columnar purchase book as per expense wise you have already studied in your previous chapters, so I'm not going to explain you how we will prepare purchase book with expense column. Directly I'll teach you how to post them in the ledger. Now this is columnar purchase book of John Fashions. Date, name of supplier, inward invoice number, LF, एक्सपेंस वाइज है, इसके लिए यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ गुड्स लिखा जाता है. फिर तीन टाइप के हमारे एक्सपेंसेस हैं, दैट इज रेलवे फ्रेट, वेजेस एंड कैरिएज, एंड द लास्ट विल बी योर टोटल. पेस्तान जी का टोटल आ रहा है 13,040, रुस्तम जी का टोटल आ रहा है 12,480, टॉमी ट्रेडर्स का आ रहा है दैट इज 9,780. इफ अगर एक्सपेंस वाइज देखें तो टोटल गुड्स अपन ने जो परचेज किए हैं दैट आर ऑफ 34,260. In that, railway freight 420, wages is of 440, carriage is of 180. So along with all these expenses, total purchasing is of 35,300. Now, in the 9th question, I have told you that अगर परचेज बुक हमारा कॉलम वाइज है तो हमें यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट भी कॉलम वाइज प्रिपेयर करना पड़ेगा. बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन with expense column and that was with your goods wise column. So जब भी goods wise column होगा तो purchase account में columns बनते हैं, और जब भी आपका expense wise columnar purchase book होगा तो purchase account आपका as usual and as normal हमारा ledger बनेगा. The reason behind this is इसके अंदर जो हमें ledgers बनाने हैं वो कौन कौन से बनाने हैं. First will be your purchase account, next पेस्तानजी, रुस्तम जी एंड टॉमी ट्रेडर्स, ये तीनों हमारे जो क्रेडिटर्स हैं इनका अपन को लेजर पोस्टिंग में करना है काम. इसके लिए तीनों के लेजर्स प्रिपेयर करेंगे. अलोंग विथ दैट हमारे तीनों एक्सपेंस रेलवे फ्रेट, वेजेस एंड कैरिएज, हमें तीनों एक्सपेंस के लेजर्स यानी तीनों एक्सपेंस के अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं. इसके लिए हम परचेज में कॉलमनर बनाते नहीं हैं. एज इफ यू पीपल रिमेंबर, 9th क्वेश्चन में कॉटन सिल्क एंड साड़ी था, तो मैंने लेजर पोस्टिंग की अंदर कॉटन सिल्क एंड साड़ी के लेजर्स नहीं बनाए थे. इसके लिए मैंने परचेज अकाउंट में तीनों के कॉलम्स प्रिपेयर किए थे. एज इफ इन क्वेश्चन नंबर 10 मेरे तीनों एक्सपेंसेस के अकाउंट्स लेजर्स बन रहे हैं तो परचेज में मैं बनाऊंगा नहीं. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ledger posting of John Fashions. I hope that this columnar purchase book as per expense wise column
इज रेडी। अगर ये रेडी होगा तो आप मेरे साथ परचेज अकाउंट का लेजर एंड फॉलोइंग लेजर्स आप प्रिपेयर कर सकेंगे। I hope that you have completed your homework. Now let us first start with our purchase book. Purchase book में आप अगर देखेंगे तो टोटल कम्स ऑफ नेट अमाउंट इज 34,260। ये टोटल का भी ये टोटल है, हमें ये कंसीडर नहीं करना है बिकॉज हमारा रेलवे फ्रेट वेजेस एंड कैरियज अलग से बनेगा। एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल दीज एक्सपेंसेस हमने नेट परचेजेस कितने का किया है 34,260। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। हम यहां पर क्या बना रहे हैं, ओनली परचेज अकाउंट। द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट इज डेबिट। वी विल रिकॉर्ड इट ऑन दी डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी ये सारे क्रेडिटर्स हैं, हमें उन्हें फ्यूचर में जाके पैसा देना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और यहां पे क्या लिखेंगे, एज पर कॉलमनर परचेज बुक। इज दिस क्लियर? और डेट कौन सा आएगा, जुलाई, द लास्ट डेट ऑफ योर ट्रांजेक्शन। इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू विल चेक, द लास्ट डेट वॉज ऑफ 3rd। अब मुझे यहां पर परचेज में कौन सा अमाउंट लिखना है, एज आई टोल्ड यू एक्सक्लूडिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस नेट परचेजेस मेरा है 34,260 का, वो यहां पे मैं रिकॉर्ड करूंगा। मूविंग फर्दर, परचेज अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर लिया। नाउ माई नेक्स्ट कम्स इज पेस्तानजीज अकाउंट। पेस्तानजी ने परचेजिंग किया है 12,600 का, दैट इज 12,600, और साथ ही साथ उसने 2 एक्सपेंसेस इनकर करके किया है, दैट इज रेलवे फ्रेट एंड वेजेस। नाउ पेस्तानजी इज अवर क्रेडिटर, सो पेस्तानजी विल हैव इट्स क्रेडिट नेचर। हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ऑन दी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमें यहां पर क्या लिखना होगा, फर्स्ट डेट, बिकॉज पेस्तानजी हमारा कब आया है, 1 जुलाई को आया है। हम यहां पर लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज पेस्तानजी हमारा क्रेडिटर है, हमें फ्यूचर में उसको पेमेंट्स करने के हैं। सो बीइंग क्रेडिटर उसका नेचर क्रेडिट होता है। अभी आप देखेंगे पेस्तानजी का परचेजिंग का कितना है, 12,600, वो आप बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे 12,600। अलॉन्ग विद दैट क्या है, रेलवे फ्रेट, तो यहां पे लिखेंगे बाय रेलवे फ्रेट अकाउंट, कितना, 200। एक और एक्सपेंस है, दैट इज वेजेस, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, बाय वेजेस अकाउंट 240। इज दिस क्लियर? परचेज में जितना उसका नेट अमाउंट था वो, अलॉन्ग विद दैट रेलवे फ्रेट एंड वेजेस। अभी आप अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आपने परचेजेस में टोटल अगर ये 13040 डाल दिया होता और यहां पे 200 एंड 240 भी आता, तो जितने से हमने पेस्तानजी का परचेसिंग नहीं किया उतने का तो हमने पोस्टिंग कर दिया। सो दैट्स वाई हमें परचेज में नेट अमाउंट का टोटल लिखना है, दैट इज 12,600, एंड रेलवे फ्रेट एंड वेजेस बीइंग अवर एक्सपेंसेस, हमें इन दोनों को इंडिविजुअली क्या करना है, पोस्टिंग करना है। मूविंग फर्दर, नाउ नेक्स्ट कम्स इज रुस्तम जी। रुस्तम जी भी हमारा क्रेडिटर है, सो वी विल रिकॉर्ड इट ऑन दी क्रेडिट साइड। और परचेज हमारे कितने हैं, नेट परचेजेस 12,160। वी विल राइट बाय परचेज अकाउंट 12,160। ओके, और इसने कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर किए थे, 220 एंड 100। 220 इज रेलवे फ्रेट एंड 100 इज कैरियज। सो बाय रेलवे फ्रेट अकाउंट, रेलवे फ्रेट अकाउंट इज ऑफ 220, और दूसरा एक और है बाय कैरियज अकाउंट ऑफ 100। ओके, ये 100 हुआ। अब नेक्स्ट कम्स इज अवर टॉमी ट्रेडर्स, ये भी हमारा क्रेडिटर है, सो इट विल ऑल्सो हैव इट्स क्रेडिट नेचर। नेट अमाउंट कितना है, 9,500। हम यहां पे बाय परचेज करके लिखेंगे
by purchase account 9500 in the account of Tommy Traders. और expenses कौन से हैं? Wages and carriage. So we will write by wages account by carriage account. Okay. Now wages अपन का कितना है? That is of 200 and carriage is of 80. साथ ही साथ मैंने आपको बोला था परचेज और ये 3 क्रेडिटर्स प्लस रेलवे फ्रेट, वेजेस एंड कैरियज का भी हमें क्या करना होगा? लेजर्स बनाना होगा. एज आई हैव शोन यू, ऑल द 3 लेजर्स आर ऑन योर स्क्रीन. रेलवे फ्रेट, वेजेस एंड कैरियज, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं. नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सो इनका नेचर कौन सा हुआ? डेबिट नेचर हुआ. वी विल रिकॉर्ड इट ऑन दी डेबिट साइड. ओके, डेबिट साइड में हमें उनका टोटलिंग करना है. रेलवे फ्रेट का टोटल कितना है? 420. जब आप टोटल रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हमने परचेज में भी क्या किया था? टोटल रिकॉर्ड किया था. तो लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. इवन हम रेलवे फ्रेट में भी क्या कर रहे हैं? टोटल रिकॉर्ड कर रहे हैं. वेजेस में टोटल, अलॉन्ग विद दैट कैरियज में भी टोटल. सो लास्ट डेट आएगा. जब कभी भी आपका टोटलिंग्स आप रिकॉर्ड करेंगे तो लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आता है. और अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो उनकी 1, 2, 3 लाइक दिस वे डेट्स आती हैं. नाउ रेलवे फ्रेट. रेलवे फ्रेट में क्या आप लिखेंगे? दैट इज टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. और यहां पर क्या आएगा आपका? एज पर कॉलमनर परचेज बुक. रेलवे फ्रेट हम देखते हैं. रेलवे फ्रेट इज ऑफ 420. आप यहां पर 420 लिखेंगे. ओके, अगेन इन वेजेस आप सेम लिखेंगे. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. यहां पर आएगा एज पर कॉलमनर परचेज बुक. वेजेस का टोटल इज 440. सो आप यहां पर लिखेंगे 440. एंड नाउ लास्ट इज योर कैरियज अकाउंट. यहां पर लिखेंगे आप टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट एज पर कॉलमनर परचेज बुक. कैरियज का टोटल इज ऑफ 180. यहां से ये आपका मिल रहा है आपको कहां से? परचेज बुक में से 180. सो यू विल राइट इट डाउन ओवर हियर 180. आई होप दिस posting of question number 10 from columnar purchase book of expense wise is clear to you people. Now in your today's homework is illustration number 6. same आपका expense wise है, same आपको ledger posting में करना है काम. and the question which I have taught you right now, that is question number 10. Thank you students for listening and understanding.